back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. So nearly गिन चुन के 20-25 दिन बचे अभी आपके एग्जाम्स को, and I understand you guys have been trying your best, you all are giving your best, and you all have waited for this day. But I also understand by the kind of messages that you all have been sending me. एक चीज़ जो मुझे समझ के आ रही है is somewhere एक sense of saturation stage already reach हो चुका है. एक feeling already हर किसी को मन में आ ही रही है कि यार बस बहुत हो गया, कब से कर ही रहे and कुछ हो नहीं रहा है, अभी जो होगा देखा जाएगा. And it is actually a very natural and normal thing to feel. So firstly understand बहुत natural है, but having said that just understand 20-25 दिन कोई छोटी मोटी बात नहीं है. So we have to equally give our inputs in the last 20-25 days also, which is what we are going to discuss in today's video. So it's going to be extremely important. So hello everybody, this is Amri Sangvi. Welcome to episode 10 of Decoding Ranker Secret, and in today's video we are going to discuss basically क्या approach होना चाहिए आने वाले दिनों के लिए, 20-25 days को कैसे plan करना है, and basically what mistakes we have to avoid in the coming days so that you get a complete clarity of things. जो भी आपके doubts है वो सारे मैंने इसमें incorporate किए हैं, so you will get a complete clarity of everything. So do watch the entire video till the end, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. Understand one thing, पहले तो रिविजन को लेके अप्रोच इज़ वेरी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मी. आप ये समझ लो, जो भी लोग इंस्टा पे मैसेज भी कर रहे हैं, पहले तो ये मिथ निकाल दो कि क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे काम बन जाएगा. क्लासेस का पढ़ा हुआ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक ही ठीक है. आफ्टर दैट यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन योर एंड कि आप इंश्योर करो कि रीड्स मल्टीपल टाइम हो रहे हैं. एक बार क्लासेस में पढ़ के, एक बार घर पे आके पढ़ के, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट वर्थ इट, ट्रस्ट मी. सो अकॉर्डिंग टू मी पहले तो ये मिथ निकाल दो कि क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है काम चल जाएगा. मल्टीपल रिविजन्स इज व्हाट यू नीड. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले तो क्वेश्चन योर सेल्फ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लास्ट रिविजन. इज द पर्पस ऑफ योर लास्ट रिविजन टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? दैट वॉज द पर्पस ऑफ योर फर्स्ट रीड, राइट? आप पहली बार पढ़ रहे हो, कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं भी समझ में आ रही है एंड यू इन्वेस्ट 2 more days in that, it is still fine because you are trying to understand things for the first time. The purpose of your last read here is to take maximum coverage of everything, provided you complete that within the time slot you've allotted for that thing. अगर आपने कोई चीज़ को सोचा है 2-2.5 दिन में ख़त्म करना ही है वो सब्जेक्ट को, you need to complete it within that time itself. That is the purpose of the read. You cannot take as much as time as you thought you could get, and आपने जो फर्स्ट रीड में जितना टाइम लिया है उतना ही आप लास्ट रीड में भी टाइम ले रहे हो. डू यू रियली थिंक देयर इज एनी प्रोग्रेस? बिकॉज टाइम इज एक्चुअली अ वेरी एसेंशियल फैक्टर. मैं आपको बोलूँ 4 घंटे लेके ये 100 मार्क का पेपर लिख दो, a lot of you all will be able to complete. But the challenge here is you need to complete in 3 hours. I'll give you 10 days for a subject, but the challenge here is you need to complete it by the last read in 2.5 days. So the challenge here is basically not just completing, it's completing by taking in account कि हमारे पास हाथ में टाइम तो इतना ही है. So your major focus in the last read has to take coverage of everything, but in the limited time. अगर कोई चीज़ छूट भी रही है, forget it. अभी के लिए forget it, mark it. जो बफर डे पे आएगा तभी देखा जाएगा. But for now you need to stick to the time you've allocated. Because at the end of the day understand, आपको हर चीज़ आती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ क्लियर है, बट आप लिखने जा रहे हो और आपको चीज़ें याद नहीं आ रही है. वेयर इज द प्रॉब्लम देन? समहाउ मल्टीपल रिविजन्स नहीं हुए. मल्टीपल रिविजन्स तभी हो गए जब एक टाइम एलोकेट कर देंगे कि इस चीज़ को इतना ही टाइम देना है. वो तभी हो ना हो, यू नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग समथिंग और सम टाइम विच यू एलोकेटेड टू द नेक्स्ट थिंग. सो आपको जो टाइम एलोकेट किया है जिस चीज़ के लिए, उतने टाइम में उसको कंप्लीट करना ही होगा इफ़ यू वांट टू टेक एंटायर कवरेज ऑफ एवरीथिंग. बिकॉज अंडरस्टैंड अभी इतना टाइम मिल रहा है, 2-2.5 दिन में नहीं हो पा रहा है. एक दिन पहले कैसे प्लान होगा? सो इन द लास्ट रीड मार्क एवरीथिंग. इफ़ यू नो यू आर स्लो तो मार्क कर लो कि यही चीज़ मुझे पढ़नी है एक दिन पहले. दैट इज़ हाउ यूल गेट अ क्लैरिटी. सो आई फील लिटिल बिट ऑफ अप्रोच हैज़ टू. डोंट नो इस बात पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्यों है, क्यों चर्चा हो रही है. व्हेन आई टोल्ड यू दैट द राइट सोर्स टू स्टडीज मॉड्यूल, इट वाज विद द एस्पेक्ट कि कोई बच्चा अगर पहले दिन से पढ़ रहा है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए उसको. दिस इज द आइडियल सोर्स विच आई हैड शेयर्ड विद यू कि आप पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल से पढ़ो, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम देयर, दे चेकिंग द पेपर्स फ्रॉम देयर. सो इट इज़ अ मोस्ट रिलायबल सोर्स. बट आई डोंट नो कहाँ से ये डाउट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं. पूरे DM पे यही सब लिख रहे हैं
दी अभी तक ये पढ़ा हुआ था, अभी ये चेंज करके मैं मॉड्यूल पे आ जाऊँ। अरे रियली इज लाइक मैं क्या जवाब दूँ इस चीज़ का। द पर्पस ऑफ सेइंग दैट वाज फॉर समबडी हु स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, उसको मॉड्यूल ही पकड़ के रखना चाहिए, बिकॉज इफ यू रीड इट वंस ऑल्सो इट विल बी अ लॉट more beneficial. But you are at a stage जहाँ पे 20-25 दिन ही बचा है and you want to now change your source. पूरे साल भर मॉड्यूल नहीं पढ़ा और अभी आपको मॉड्यूल पढ़ने का शौक हो रहा है. So the purpose of saying that, I just don't want it to come across as a wrong way. The purpose of saying that was that if somebody is reading for the first time, they read it from the module at least once. Now you're at a stage जहाँ पे आप आपका सोर्स ही चेंज करने का सोच रहे हो. So I don't think that is very much preferable because 20-25 दिन में होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. Don't change your source. जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, do study from there itself, because understand after a point, it happened with me, I don't know if it happens with you all, आँखों को भी आदत हो जाती है एक चीज़ को कैप्चर करने की. While I was writing my answers, I could literally imagine how the page was looking like, what the text was like, was it bold, italic, जो भी चीज़ें होती है वो आपके सामने आती है. So your visual cannot change last minute. You going halfway and then planning to change your source, not even module, like any other book also. According to me, अगर आप bluntly पूछो तो मैं तो बोलूँ अभी कुछ नया करो भी मत. कोई चीज़ है जो आपको लग रही है कि एक ही चीज़ है वो डिफ़िकल्ट है, जस्ट इमेजिन कि उसके आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं. उसके पीछे आप 10 और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. सो डोंट डू ऑल्सो एनीथिंग न्यू एंड वॉट एवर सोर्स यू स्टक टू सो फार, बिलीव इन दैट नाउ. अभी जहाँ से भी पढ़ा है, बिलीव इन दैट एंड कीप स्टडिंग फ्रॉम दैट, बिकॉज योर आईज आर नाउ हैबिचुएटेड टू सीइंग दैट थिंग. सो आई डोंट थिंक इट्स प्रेफरेबल कि आप आपका सोर्स चेंज करो. सो दिस क्वेश्चन आई फील हैज़ टू just come to an end. जून वाले हो तो ठीक है, बट इफ यू आर अटेंडिंग फॉर दिसंबर, इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल 20-25 दिन में आप सारे सब्जेक्ट्स की मॉड्यूल अच्छे से कर लोगे. इट्स इम्पॉसिबल. सो डोंट चेंज योर सोर्स. जहाँ से पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, अच्छा है, बिलीव इन दैट एंड नाउ स्टिक टू दैट सोर्स इटसेल्फ, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम द फर्स्ट डे वहाँ से. नाउ अ लॉट ऑफ यॉल वर ऑल्सो मैसेजिंग मी कि कोई कोई चैप्टर्स ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो स्टार्ट से देखे ही नहीं है और अभी इतना टाइम बचा ही नहीं है कि उसके लेक्चर्स देखे, रिविजन लेक्चर्स देखे, क्या करें. सो द सिंपल सोल्यूशन हियर इज डोंट फॉरगेट टू रेफर द पास्ट पेपर्स. वो चैप्टर के जो भी पास्ट पेपर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर दो, एंड स्पेशली फॉर द लास्ट अटेम्प्ट पीपल, 2017 आई गेस आपका सिलेबस लास्ट अटेम्प्ट है. सो 5 साल के जो भी पेपर्स है सारे कोई ग्लैंस कर लो, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कोई ना कोई पेपर में कवर हो ही रहा है. इफ यू कवर दैट, नियरली 80% ऑफ दैट चैप्टर इज गोइंग टू गेट कवर्ड इन दैट इटसेल्फ. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड पास्ट पेपर कैसे पूछते हैं, कैसे होता है, ऑप्शन में कैसे आती है चीज़ें. यू विल गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ हाउ पेपर्स विल कम लाइक, ताकि आप वहाँ पे जाके पहली बार देखो वैसी फीलिंग आपको ना आए. हालांकि मैंने हमेशा आपको बोला था कि एक पेपर लिखो. नाउ इफ यू डोंट हैव द टाइम टू एटलीस्ट ग्लैंस वन पेपर एवरी डे, सो डोंट मिस ऑन टू पास्ट पेपर्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आई टोल्ड यू कि कोई चीज़ नहीं मत करो, बट अंडरस्टैंड अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. तो वो एक चीज़ आप डेली बेसिस पे ध्यान रखो कौन से अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, मेक द नेसेसरी चेंजेस एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व योर पास्ट पेपर. They messaged me on Instagram asking कि ये चीज़ का मैं सिर्फ मैराथन देख लूँ तो चलेगा कि नहीं. सो नाउ दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. आई डोंट थिंक लास्ट मोमेंट पे आपको मैराथन इतना ज़्यादा रिलायंट होना चाहिए. सी देयर इज़ अ लॉजिक. वंस यू सी दैट लेक्चर यू वो सुनने में टाइम जाएगा, उसके बाद आप खुद बुक से पढ़ोगे, उसमें डबल टाइम जाएगा, उसके बाद रिटेंशन में और टाइम जाएगा. सो दिस थिंग इज़ ओनली यूजफुल फॉर द कॉन्सेप्ट्स यू नेवर स्टडीड. वो आपने कभी स्टार्ट से ध्यान नहीं दिया है और कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका स्टार्ट से मिस हो गया है, वो चीज़ को अगर आप 2 घंटे लेक्चर नहीं दे सकते और आधे घंटे में मैराथन देख के करो, देन इट इज़ फाइन. बट देयर माइट बी सम चैप्टर्स यार जिस पे आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है. आपको क्यों देखना है उस चीज़ का मैराथन अगेन? इफ़ यू हैव लॉस्ट द लिंक, watch for 5 minutes, take a grip of that chapter and then start studying on yourself, because वो आपको temporarily आपके mind से गया है but आपने पढ़ा है वो चीज़ एक बारी. So investing double of your time in the last days I would not suggest, but this is only useful when it's something जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है. तो उसके लिए आप स्टार्ट में जितना टाइम डाल पा रहे थे उतना आप नहीं डाल पाओगे, which is why according to me that will be useful for you, but I don't suggest कि आपको हर चीज़ के लिए सिर्फ मैराथन रिलायंट रहना चाहिए. because see at the end of the day टेंशन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी. दैट यू हैव टू टेक इट समवेयर. मैराथन विल गिव यू अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नो डाउट इन दैट. इट विल गिव यू इन अ लिमिटेड टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे याद करने के लिए आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा. तो ये 2 बार आपका टाइम जा रहा है. सो द थिंग्स यू आर कॉन्फिडेंट ऑन, यू डू नॉट नीड टू सी द मैराथन.
फॉर दोज थिंग्स विच यू फील कि हाँ मेरे यहाँ पे लैक हो रहा है, उसके लिए मैं देख लेती हूँ, या तो मैं 5 मिनट देख लेती हूँ, एक चैप्टर के साथ ग्रिप ले लेती हूँ और उसके बाद खुद से पढ़ती हूँ, देन इट्स फाइन. सो दिस इज माई लॉजिक टुवर्ड्स मैराथन. इफ यू हैव सम अदर लॉजिक इट इज़ फाइन इफ इट वर्क्स फॉर यू, बट आई पर्सनली फील लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा दो चीज़ों को टाइम देना, यू विल अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग एल्स. एक ही चीज़ को आप 2 बार ही टाइम दे रहे हो, पहले आप लेक्चर देख रहे हो उसका, फिर बुक से पढ़ोगे, फिर रिटेंशन करोगे. सो लास्ट 20-25 डेज में मैं इतना ज़्यादा नहीं सजेस्ट करूँगी ऑन द थिंग्स यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ऑन. सो दिस इज़ माई व्यू पॉइंट, बट यू सी हाउ इट वर्क्स इन योर केस. अंडरस्टैंड देयर वाज पर्टिकुलरली अ रीज़न व्हाई आई वाज स्ट्रेसिंग सो मच कि जो स्केड्यूल रखा है वही एंड तक फॉलो करो. बिकॉज अंडरस्टैंड मोर देन योर बॉडी एट दिस पॉइंट योर माइंड इज ऑल्सो ट्रेन. अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हो, योर माइंड इज समवेयर ट्रेन कि बस अभी बंदा आएगा 10 बजे सोएगा, एंड दैट्स हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू गेट रेस्ट. करने को आप सब कर सकते हो, आप पूरी रात भी जाग सकते हो, आप जितना खींचना खींच सकते हो, बट जस्ट अंडरस्टैंड लास्ट के इतने दिनों में आप खींच रहे हो, यू हैव टू कैरी सम कंटिजेंसी फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. एग्जाम के दिन पे आपको थोड़ा यहाँ वहाँ स्लीप होगा, थोड़ा डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप आप लेना ही लेना, बट थोड़ा यहाँ वहाँ पे कंटिजेंसी एग्जाम डे का लेना पड़ेगा. फॉर दोज हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स कॉन्ग्रेचुलेशंस. और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वो चीज़ का प्लानिंग हमें पहले से करना है. योर बॉडी हैज़ टू बी एक्टिव एट दैट पॉइंट, एंड इफ यू ड्रेन योर सेल्फ सो मच इन द लास्ट 20-25 डेज, आपको सही में लगता है आपके बॉडी के पास कुछ आउटपुट देने को बचेगा भी वो 9 दिनों में. सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर फिजिकल मेंटल हेल्थ जो भी है, सो दैट वो 9 दिनों में आप पहले से ही प्रिपेयर हो कि थोड़ा स्लीप यहाँ वहाँ हो सकता है, डिसेंट स्लीप लेना है, बट दैट कंटिजेंसी यू हैव टू क्रिएट, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू टेक अ गुड स्लीप, a good sound study schedule what you followed from the first day. Because if you drastically change, आप करने को कर लोगे, but the body will not be able to cope up with that, which is why whatever you followed, do that itself, because you will feel that you will be able to, but in long run it can cause a lot of problems जो हमें अभी से ध्यान रखना है. which is why take care of your physical mental health, because nobody else will take care. So you have to understand कि उस चीज़ की भी importance इतनी है. So I hope this video has helped and solved a lot of your doubts. If you have any other video suggestions, you can also mention in the comments. आपको कोई और doubts है वो भी डाल दो. So until then, study well. I will soon see you guys with another video, hopefully with exam series. And until then, just study well, do your best. God will take care of the rest.